مما چڑیا روٹی بنا رہی تھی اور اس کے دونوں بچے اس کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ مما پہلے مجھے روٹی دے، میں نے اپنا اسکول کا بیگ بھی تیار کرنا ہے ابھی۔ گڑیا بہن آپ ہر روز ایسا ہی کرتی ہیں، آج تو پہلے روٹی میں ہی کھاؤں گا۔ اچھا لڑائی مت کریں، میں نے دونوں کے لیے ہی روٹی بنا لی ہے۔ پھر مما چڑیا اپنے دونوں بچوں کو روٹی دیتی ہے، بچے روٹی کھا لیتے ہیں۔ گڑیا اپنا اسکول بیگ تیار کرتی ہے اور مما چڑیا اسے اسکول چھوڑنے جانے کی تیاری کرتی ہے۔ کوکو بیٹا گھر میں ہی رہنا، اگر کوئی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ مما واپس آتے ہوئے میرے لیے غبارہ لے کر آنا، میں لے آؤں گی مگر دروازہ مت کھولنا۔ گڑیا اپنی مما کے ساتھ اسکول چلی جاتی ہے۔ بڑے پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا دشت کوا کئی دنوں سے چڑیا کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچے پکڑنے والا برا کوا تھا۔ مما چڑیا کو جاتا ہوا دیکھ کر دشت کوا چڑیا کے دروازے پر آتا ہے۔ کیا کوئی اس گھر میں ہے؟ کوئی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آواز تو مجھے کبوتر انکل کی لگ رہی ہے۔ کوئی ہے تو مجھ سے غبارے لے لے۔ ہاں میں گھر میں ہوں انکل، میں ابھی آتا ہوں۔ کوکو جلدی سے دروازہ کھولتا ہے۔ میں سمجھا آپ کبوتر انکل ہیں، مگر آپ کون ہو؟ تجھے تیری مما بتانا بھول گئی ہوں گی، میں تمہارا کوا تایا ہوں۔ میرے پاس رنگ برنگے غبارے ہیں، کیا تم غبارہ لوگے؟ کوے تایا مجھے غبارے بہت پسند ہے، کیا آپ مجھے لال رنگ کا غبارہ دے سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں۔ پھر کوا اپنی تھیلی سے کوکو کو لال رنگ کا غبارہ نکال کر دے دیتا ہے۔ کیسا لگا تمہیں یہ غبارہ؟ بہت اچھا، میری بہن کے لیے بھی ایک غبارہ دے دیں کوے تایا۔ آپ اپنی بہن اور مما کے لیے بھی لینا چاہتے ہو لال رنگ کا غبارہ تو میرے ساتھ آؤ، وہ سامنے بڑے پیڑ کے پیچھے میرا گھر ہے، میں دوں گا تمہیں ڈھیر سارے لال رنگ کے غبارے۔ یہ سن کر کوکو بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ میری مما کے لیے بھی غبارہ دیں گے تو مما بہت خوش ہوں گی، میں تیز اڑ سکتا ہوں، چلے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر کالو کوا کوکو کو ساتھ لے کر اڑتا ہے۔ کوا کوکو کو جنگل کی دوسری طرف بڑے پیڑوں کے بیچ لے جاتا ہے۔ کوے تایا مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے، اندر آ جاؤ اور اپنی پسند کے غبارے لے لو۔ کوا دھوکے سے کوکو کو گھر کے اندر لے جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ مما ڈانٹیں گی، آپ مجھے جلدی سے غبارے دے دیں، مجھے مما کے آنے سے پہلے گھر جانا ہے۔ غبارے؟ کون سے غبارے؟ اب تم یہاں رہو گے میری قید میں، اور میں تمہیں کسی چیل کو بیچ کر کماؤں گا ڈھیر سارا دانا یا پھر بدلے میں پکے ہوئے پھل۔ کوکو رونے لگ جاتا ہے۔ چھوٹے بچے، یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہارے رونے کی آواز سن سکے، چپ کر جاؤ۔ کوا کوکو کو رسی سے باندھ دیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چپ کر جاؤ، اگر زیادہ رونے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ کوا سو جاتا ہے اور کوکو ڈر کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب مما چڑیا اپنی بیٹی گڑیا کو اسکول سے لے کر گھر واپس آتی ہے تو کوکو کو گھر میں نہ دیکھ کر مما چڑیا چنتت ہو جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی کوکو کہاں چلا گیا؟ مما دروازہ بھی کھلا تھا، شاید وہ کسی بچے کے ساتھ کھیلنے چلا گیا ہوگا۔ آپ کبوتر انکل کے گھر جا کر پوچھیں اور میں طوطے انکل کے گھر جاتی ہوں۔ پھر مما چڑیا گھبرائی ہوئی کبوتر کے گھر جاتی ہے۔ نہیں چڑیا، تمہارا بیٹا یہاں تو نہیں آیا، کیکی تو صبح سے اپنے گھر میں ہے۔ آنٹی مجھے کوکو کل ندی پر ملا تھا، آج تو میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کبوتر بھیا نہ جانے کوکو کہاں چلا گیا ہے، میں نے گھر سے جاتے سمے اسے کہا بھی تھا کہ گھر میں رہنا۔ نہیں گڑیا بیٹی، میں تو صبح سے دوسرے جنگل گیا ہوا تھا، میں تو ابھی آیا ہوں، وہ یہاں تو نہیں آیا۔ گڑیا روتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔
गुड़िया बेटी, कुछ पता चला कुकू का? नहीं मम्मा, कुकू तोते अंकल के घर तो नहीं है। कबूतर के घर में भी नहीं गया कुकू, फिर वो कहाँ जा सकता है? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। शाम हो जाती है मगर उन्हें कुकू कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर वो दोनों माँ बेटी फिर से घर वापस आ जाती हैं। मम्मा, कुकू भाई पहले कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं गया, उसे कोई लेकर गया होगा। मगर कौन ऐसा कर सकता है बेटी? कोई बुरा पक्षी। मम्मा, इस जंगल में सबसे बुरा पक्षी कौन हो सकता है? गुड़िया बेटी, चील से बुरा कौन हो सकता है? वही पक्षियों के छोटे बच्चों को खाती है। मगर इन दिनों तो जंगल में कोई चील भी नहीं है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया फिर से कुकू की खोज में निकल जाती हैं। मम्मा चिड़िया नदी की तरफ और गुड़िया घने जंगल की तरफ जाती है। एक घर देखकर गुड़िया वहां जाती है। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता बाहर निकलती है। छोटी चिड़िया, क्या बात है बेटी, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरा भाई कहीं खो गया है। क्या वो आपके घर तो नहीं है? नहीं बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यहाँ तो कोई बड़ा पक्षी नहीं आता, फिर छोटा कैसे आएगा? माँ जी, कल से मेरा भाई नहीं मिल रहा। उसे कोई चील तो नहीं खा गई होगी? बेटी, कई सालों से इस जंगल में चील का आना जाना नहीं है। हाँ, दुष्ट कौवे जरूर ऐसा काम कर सकते हैं, मगर वो कौवे बहुत चातुर हैं। तुम्हें किसी तरह उनसे अपने भाई की जानकारी लेना होगी। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। चुप चुप कर जाओ, लो ये दाना खा लो ताकि तुम जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो फिर ही मेरे हाथ कुछ लगेगा। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। कल मैं ले जाऊंगा तुझे तेरी चील मम्मा के पास। दिल खोल कर बातें कर लेना अपनी चील मम्मा से, और फिर चील मम्मा तुझे खा लेगी। अपने सर पर नकली बाल लगाकर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया बनती है। वो तो ऐसे लग रही थी जैसे सच में कोई बूढ़ी चिड़िया हो, और घने जंगल की तरफ चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता ने गुड़िया को बताया था कि दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं, इसलिए गुड़िया घने जंगल की दूसरी तरफ जाती है। उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ बुरा कौवा दिखता है। बेटा कौवे, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई नौकर ला कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। बूढ़ी चिड़िया, अगर सच में तुम मुझे ढेर सारे पैसे दो तो मैं कुछ दिनों तक तुम्हें किसी पक्षी का बच्चा किडनैप करके ला दूंगा। तो फिर मैं कल दोबारा आऊंगी। मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी नौकर के बदले। गुड़िया आगे बढ़ती। थोड़ी दूर उसे कालू कौवा दिखाई देता है जो एक पिंजरा बना रहा था। गुड़िया वहां जाती है। कौवे बेटा, मैं दूसरे जंगल से, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर ला दो जो मेरे काम करे तो मैं तुम्हें पूरा 5,000 दूंगी। ये सुनकर कालू कौवे के कान खड़े हो जाते हैं। 5,000? हाँ बूढ़ी चिड़िया, मेरे पास एक छोटा पक्षी है। तुम मेरे साथ आओ और पसंद कर लो, और फिर मुझे पैसे देकर वो छोटा पक्षी ले जाना। सारी उम्र तुम्हारी नौकरी करेगा वो, और वो भी बिना तनख्वाह के। गुड़िया, जिसे कौवा भी पहचान ना पाया था, वो कौवे के साथ जाती है। अपने भाई को रस्सी से बंधा हुआ देखकर गुड़िया को हौसला होता है, मगर वो अभी कौवे से छुपाती है कि वो कौन है। ये बूढ़ी चिड़िया, ये बच्चा कैसा है? इसे मैं कल ही किडनैप करके लाया हूँ चील को देने के लिए। हाँ, अगर तुम मुझे अच्छी कीमत दो तो ये तुम ले जाओ। मैं अभी पैसे लेकर आती, तुम मेरा इंतजार करो। बूढ़ी चिड़िया, जल्दी आना वरना मैं इसे चील को दे दूंगा।
मैं अभी आई बेटा। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई जाती है और पुलिस को साथ लेकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। पुलिस? मैंने क्या किया है? गुड़िया अपने सर से नकली बाल उतारती है। तुमने मेरे भाई कुकू को किडनैप किया है। पुलिस, ले जाओ इस दुष्ट कौवे को। तुम्हें उल्टा लटका कर मार पड़ेगी तो फिर ही तुम सुधरोगे। गुड़िया, गुड़िया बहन, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये कौवा मुझे चील के पास लेकर जाने वाला था। फिर पुलिस कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। गुड़िया, गुड़िया बहन, सच सच में मैं भी आपको पहचान न सका। हाँ कुकू बेटा, मगर अब पहले रोटी मैं ही खाऊंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। उधर दुष्ट कौवा पुलिस से पिट रहा था। हाय हाय हाय, मर गया रे, हाय। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया को कई दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा के लिए दवा लेने गए हुए थे। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उन्हें देख रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पास आओ, मेरी जान, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी जान, आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया, मेरे बात हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंस कर सह लेना, हमेशा मेहनत करना और अच्छाई का साथ देना, जैसे जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा किया। फिर गुड़िया की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। वो रोती हुई खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसका पापा अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर। जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है। न जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे। 1-2 दिन और देख लें आप, अगर फिर भी वो ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभालूंगी। मैं आपकी बेटी की देखभाल भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर पापा चिड़िया अपने घर को चला जाता है। पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई। क्या रानो मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना। गुड़िया रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, मगर उसे अपने पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आता जिसे गुड़िया महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन पापा स्वीटी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में ले आता है। गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ गुड़िया, मैं आ गई हूँ। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने दे। आपने तो बहुत जल्दी की दूसरी शादी करने में। बेटी, मुझे बाहर के काम भी करना होते हैं और घर को भी देखना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। गुड़िया की सौतेली बहन गुड़िया को देखकर उससे कहती है,
तुम्हें जरा चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती हैं कि पापा ने जो भी कमाया है आपकी पहली मम्मा के इलाज पर ही लगा दिया। मगर गुड़िया कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि उस घर में कोई चिड़िया भी थी। भूली नहीं तो एक गुड़िया जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती थी। स्वीटी, जिस दिन से आप आई हैं, मेरी तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था रोना ही रोना होता था। अच्छा, अब काम पर जाइए और आते हुए मेरी मानो के लिए आइसक्रीम भी लेते आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है। अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कपड़े धो लो। ना जी ना, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन। मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब माँ ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से अब कोई दुख नहीं होता। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं शाम को देर से घर आऊंगी। मैंने मना किया है तुम्हें, कहीं इधर उधर न जाना। नदी से होकर सीधी घर वापस आ जाना। फिर स्वीटी की सगी बेटी, जिसका नाम मानो था, वो बाहर चली जाती है। प्रिया, अगर कपड़े धो लिए तो खाना भी बना लेना। मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मानो, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार मानना ही पड़ती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें। समझो मेरी मम्मा मान गई। ऐसे मानो शाम तक एक कौवे से बैठी बातें करती रहती है और शाम के घर चली जाती है। मैंने आज मानो को एक बुरे कौवे के पास बैठे हुए देखा। वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं पूछूंगी। तुम गुड़िया पर नजर रखो, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। इतने में मानो भी आ जाती है। मानो मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? माँ, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुन ले। मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया और मानो की मम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शादी, और वो भी एक कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें। ऐसे कौवों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मगर मानो अपनी मम्मा की बात सुनी अनसुनी करके दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। गुड़िया घर के सारे काम करती और फिर अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन भी लाती। मगर वो कभी भी दुखी ना होती, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू कौवा मानो से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। जहर? ये किस लिए जग्गू जी? ऐसे तुम्हारे मम्मा और पापा कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए है ये जहर। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। मानो उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो गुड़िया दूसरे पेड़ के पीछे बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को सब घर में थे जब मानो गुड़िया से कहती है, मनहूस, आज अपने मम्मा और पापा के लिए दूध मैं लाऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसे कहते हुए मानो रसोई में जाकर 2 गिलास दूध डालकर उसमें 2 कतरे जहर के मिला देती है। लो मम्मा पापा, वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि गुड़िया बोलती है, मम्मा पापा, मानो ने दूध में जहर मिलाया है। ये उस बुरे कौवे से शादी करने के लिए आप दोनों को मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं।
मनहूस, भाग यहाँ से। मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरा विश्वास करें पापा, मैंने मम्मा को खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है तो इसे कहें कि खुद एक घूंट पी कर दिखाए। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। लो मेरी मानो बेटी, पी लो थोड़ा सा दूध। मगर मानो घर से भाग जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, आज मुझे पता चला कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और वो गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है।